Yes, good morning everyone. Sorry for a little bit delay. Yeah, so I hope everyone is fine. Uh, yes, let's start today's session. So, till here, first of all, just give me one opinion from your side, whether you all are getting whatever I am teaching here. Just let me know. Just write down in chat box. Are you getting what I am teaching here? Lab as well as lectures. So in chat box, you need to write down. So why I am asking, because this is online and I cannot see your face, you cannot see my face. What's going on in your mind, I cannot predict. That's why I'm asking you people. Okay, fine. So most of says yes. Okay. So anyway, so we'll move ahead, and I think what we'll do is let me show you this our Word file where it is written. So okay, just hold on, just 1 minute, hold on. Just 1 minute, everyone. There's some problem in this ID. Let me just uh, why ID is not launching. Okay, everyone, just give me 2 minutes time. There is some problem with ID. 1 minute. I will take 1 2 minutes time. Okay, everyone, I have relaunched the ID. Anyway, so let me present my screen. Let me know when you see my screen. I think it's launched. Fine. So last week we have seen this abstraction. What is abstract class? Yes, one more difference which is not here. I'm going to show you from internet difference between abstract and
interface. So abstract class and interface, there is a difference which is not there in my document. So I guess so I feel we should learn from internet. So let me read it for you people. Abstract class interface both are used to achieve abstraction, where we can declare abstract methods. Abstract class interface both can't be instantiated. These two are common properties, okay? But these are the difference. Abstract class can have abstract and non-abstract method, whereas interface can have only abstract method. So this difference you can always refer it. Abstract class doesn't support multiple inheritance. Interface supports multiple inheritance. Abstract class can have final, non-final, static and non-static variables. Interface has only static and final variables. Abstract class can provide implementation of interface. Interface can provide implementation of abstract class. Anyway, so these are the difference that you can always read it. We have not yet covered this difference, but difference are very basic. We have already covered these points in our individual topics, but we not covered this difference. Okay, so read the difference by yourself: abstract class and interface, right? Okay, now we'll see the next topic, that is polymorphism in Java. What is polymorphism? So polymorphism is a concept in which we can perform single action in different ways. Polymorphism is derived from two Greek words, poly and morph. The word poly means many and morph means many forms. So polymorphism means many forms. Okay. So there are two types of polymorphism in Java: compile time and runtime polymorphism. So we can perform polymorphism in Java by method overloading and method overriding. Okay. So if you overload a static method in Java, now polymorphism means you see actually in our words. हाँ, अगर मैं अपने वर्ड्स में बात करें तो एक ही नाम के अलग अलग फॉर्म है. जैसे कि हमने ये मेथड वाला देखा, we have seen this method. Okay, just a minute. Yes, so I was explaining polymorphism. Let me remove all these things. Okay, now you see this is class M is there. Class M, it has one method, void method. Now for class M, if I declare one more method, void method, integer a comma integer b. Is this allowed? Is this Yes, allowed? sir. It's called overloading. Yes, so this is also known as a polymorphism. Why polymorphism? You see the one form, one name, but different ways. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक दिस विल रन और दिस विल रन. ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैनी फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे देखो इसका मेथड का मैनी फॉर्म. So runtime polymorphism in Java. So actually polymorphism में भी runtime polymorphism क्या है, उसको बोलते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डायनामिक डिस्पैच मेथड, डायनामिक मेथड डिस्पैच जो भी है वहां पे ये है.
मतलब नाम अलग अलग है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं उसको। क्या है एक्चुअली? इज अ प्रोसेस इन विच अ कॉल टू एन ओवररिडन मेथड इज रिजॉल्व एट रन टाइम रादर देन कंपाइल टाइम। ठीक है, कोई भी मेथड को ओवरराइड करने का जो कॉल है वो रन टाइम में होता है, कंपाइल टाइम के जगह पे। ठीक है, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डायनामिक मेथड इसको बोलते हैं। So in this process, an overridden method is called through the reference variable of a superclass. Overridden method is called through the reference variable of a superclass. ठीक है, सुपर क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है उससे हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो उससे ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझने के लिए सबसे पहले हम समझे अपकास्टिंग क्या है। देखो मैं अपकास्टिंग पहले भी बताया था। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है? इफ अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, इट इज नोन एज अपकास्टिंग। सिंपल एग्जांपल, देखो यही एग्जांपल समझेंगे। क्लास ए है, फिर क्लास बी से एक्सटेंड किया क्लास ए को, तो ए इज इक्वल टू न्यू बी। ये देखो अपकास्टिंग किया है। न्यू बी मतलब ऑब्जेक्ट बनाया है बी का, पर ए का हमने रेफरेंस वेरिएबल किया है, उस रेफरेंस वेरिएबल में हमने ये ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो इसको बोलते हैं अपकास्टिंग। ठीक है, ये देखो थोड़ा डिफरेंट वाला है सिंटेक्स, इसको बोलते हैं अपकास्टिंग। इंटरफेस आई, क्लास ए, क्लास बी एक्सटेंस ए इंप्लीमेंट्स आई, ऐसा कुछ है। तो भाई इसको क्या बोलते हैं? बी इज ए, बी इज ए, बी इज ए आई, बी इज ए आई, बी इज ए ऑब्जेक्ट, बी भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो भाई ये छोटा वाला टॉपिक जो क्या था अपकास्टिंग वाला, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, in Java we can use the code using a is a relationship or using has a relationship, and is a relationship also known as inheritance and has a relation also known as a composition in Java। ठीक है, हाँ तो भाई ये जो था is a relationship में है, B is a A। ठीक है ना, B is a A, B is a I। ठीक है, अभी आगे देखते हैं is a relationship बोला, इसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो is a relationship क्या है और has a relationship क्या है। ठीक है, इज रिलेशनशिप किस में आता है? इनहेरिटेंस में आता है, ये ख्याल रखना है। इज ए कम्स इन इनहेरिटेंस, हैज अ रिलेशनशिप कम्स इन कंपोजिशन। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। इज रिलेशनशिप आता है इनहेरिटेंस में। फर्दर इनहेरिटेंस इज टू टाइप्स, क्लास इनहेरिटेंस एंड इंटरफेस इनहेरिटेंस। Used for core reusability in Java. For example, a potato is a vegetable, bus is a vehicle, bulb is electronic device, so on. One of the properties of inheritance is that inheritance is unidirectional in nature. Like we can say that house is building, but not all buildings are house। ठीक है, इज रिलेशनशिप का देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है। पल्सर जो है इज अ बाइक है, तो इज हम बोलते हैं एवरीवन। पल्सर हैज ए क्लास इंजन, तो पल्सर की प्रॉपर्टीज क्या है? इंजन है, तो हैज ए आता है। देखो इजे का आता है, इनहेरिटेंस आता है। बाइक का सुपर क्लास को हम क्या करते हैं यहाँ पे सब क्लास में ऐसा डिराइव करता है ना, और हैज ए क्या आता है? वो क्लास इंजन है। ठीक है, then Java has a relationship also known as a composition. It is also used for code reusability in Java. Java has a relationship simply means that instance of one class is a reference to instance of another class। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसका इंस्टेंस बनाया पल्सर का और इसका अपने ऑब्जेक्ट डाल दिया, या फिर इसका इंस्टेंस से हम इसको कॉल कर रहे हैं पल्सर को, इसको इसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, और हैज देखो ये इज ए रिलेशनशिप है, वो इनहेरिटेंस में हम यूज करते हैं, पर हैज जो है वो उसके लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, है ना, उसके लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। देखो ये एग्जांपल है रिलेशनशिप डेमो ऐसा पैकेज, ये बाइक क्लास और उसमें मैक्स स्पीड और बाइक इन्फो नाम की मेथड है, सेट कलर, सेट मैक्स स्पीड। ठीक है, अभी देखो ये पल्सर जो है बाइक को एक्सटेंड करता है, तो ये क्या हुआ? इज ए रिलेशनशिप हुआ, इज ए रिलेशनशिप जो कि जिसके इससे वजह से बाइक का जो भी वेरिएबल है और जो भी मेथड है वी कैन यूज इन अ पल्सर क्लास। Pulsar is a type of bike that extends bike class that shows a pulsar is a bike। और क्या है देखो, जैसे कि अभी ये हो गया अपना, यहाँ पे था पल्सर एक्सटेंड बाइक, पर अभी देखो इंजन है
और यहाँ पे हमने पल्सर का जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, उससे हम जो भी मेथड हम कॉल करवा रहे हैं, इसकी मेथड पल्सर क्लास की या इंजन क्लास की या किसी और क्लास की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैज ए रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल में देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हम अचीव करते हैं। वो पहले का एग्जांपल था अपकास्टिंग वाला और इज ए रिलेशन एज ए रिलेशनशिप का, ठीक है। अभी इन वी आर क्रिएटिंग टू क्लास, बाइक एंड स्प्लेंडर। बाइक एंड स्प्लेंडर वी आर क्रिएटिंग टू क्लासेस। स्प्लेंडर क्लास एक्सटेंड्स बाइक क्लास एंड ओवरराइड्स इज रन मेथड। देखो स्प्लेंडर क्लास है, वो बाइक क्लास को एक्सटेंड करता है। देखो ये बाइक क्लास है, ये स्प्लेंडर क्लास है, वो बाइक क्लास को एक्सटेंड करता है। यहाँ पे ओवरराइड्स इज रन मेथड। देखो रन मेथड दोनों में है, रन डेफिनेशन भी सेम है, पर स्प्लेंडर में बाइक का ऑब्जेक्ट बना के, बाइक का रेफरेंस वेरिएबल बना के स्प्लेंडर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो किसका मेथड रन होगी? ये स्प्लेंडर क्लास की मेथड रन होगी, ठीक है। Since it refers to the subclass object and subclass method overrides the parent class method, तो इसको जब मैं ये रन मेथड में कॉल करवाता हूँ किस ऑब्जेक्ट से? बाइक से, बाइक के ऑब्जेक्ट से, तो इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, तो भाई ये कंपाइल टाइम पर नहीं डिटरमाइन करता कौन सी मेथड रन करनी है, पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम डिसाइड होता है कि कौन सी रन मेथड रन करनी है। तो ये रन मेथड रन होगी किससे? बाइक बी डॉट रन, ठीक है। तो रन मेथड इन्वोक होती है। रन मेथड कैसे इन्वोक होगी? देखो वंस अगेन ये एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, क्लास बाइक ले लेता हूँ, रन मेथड, अभी देखो न्यू क्लास है, इसमें ये सब निकल लेता हूँ। यस यस कुशल, कुशल हेलो, Sir. एनी डाउट? No, sir. Okay, you raised your hand, that's why. Sir, by mistake, my network is not stable. ओके नो प्रॉब्लम, फाइन। हाँ भाई देखो क्या है, क्लास बाइक है, उसमें एक रन मेथड है। अभी देखो ये न्यू क्लास है, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड कर रहा हूँ बाइक क्लास को, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं एग्जैक्टली यही मेथड रेप्लिकेट करता हूँ, यही मेथड है इसके अंदर, रनिंग न्यू क्लास, रनिंग बाइक। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड के अंदर बाइक का मैं रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ, इज इक्वल टू किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ? न्यू क्लास, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बी डॉट रन, बी डॉट रन करता हूं तो क्या होता है? देखो कौन सी मेथड रन होगी, कौन बताएगा? कौन सी मेथड रन होगी यहाँ पे? ये सबमिट करके बोल सकते हो। न्यू क्लास सर। क्यों न्यू क्लास की मेथड रन होगी? क्योंकि सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बनाया गया है बाइक को न्यू क्लास से एक्सटेंड किया गया है सर। हाँ वेरी गुड। देखो ऑब्जेक्ट नहीं, रेफरेंस वेरिएबल बनाया। हाँ हम ऐसा बोलते हैं, हम वर्ड्स को ऐसे लूजली यूज करते हैं। देखो सही में तरीके में क्या होता है, बाइक बी, ये बी है, रेफरेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट किसका बना है? न्यू क्लास का। ऑब्जेक्ट न्यू क्लास का बनना है तो सबसे पहले वो कौन सी मेथड रन करेगा? जो जिसका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट बना है? न्यू क्लास का। न्यू क्लास में जो मेथड है उसको रन करेगा, बी डॉट रन, ये रन होता है, ठीक है। तो रनिंग न्यू क्लास ऐसा होगा।
तो भाई आप बोलते हो कि दोनों साइड रन मेथड है, तो यही रन मेथड क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बना है इसीलिए, ठीक है, ये याद रखना है। अगर देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, ओवरराइड ऐसा ऐड कर दो, ओवरराइड हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ओवरराइड हमने ऐसा ऐड कर दिया। ओवरराइड मतलब क्या है कि ये रन टाइम ओवरराइड होता है। रन टाइम जिसका ऑब्जेक्ट बना, मतलब जब रन करते तब इसका ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट से हम ये रन को कॉल करवाते हैं, ये रन नहीं कॉल होता, ठीक है, इसलिए ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक मेथड डिस्पैच, ठीक है। यही एग्जांपल था। देखो ये बैंक वाला दिया हुआ है, बैंक वाला दिया हुआ है, देखो ये अपना एसबीआई बैंक है, उसमें एक हमने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करके एक मेथड डाल दिया। अभी सभी बैंक को है ना ये क्लास को एक्शन करना है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस है, तो एसबीआई में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आईसीआईसीआई में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सिस में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। देखो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न 0 करेगा, पर अगर मैं एसबीआई को मैं क्लास करता हूँ, बैंक में एक्शन करता हूँ, तो 8.4 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आईसीआईसीआई में बैंक को एक्शन करता हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.3 होगा। एक्सिस बैंक में बनाता हूँ और उसमें एक्शन करता हूँ बैंक, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9.7। और मैं मेन मेथड बनाता हूँ, और बैंक बी, बी इज इक्वल न्यू एसबीआई। देखो बी क्या है, ये क्लास बैंक का क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल न्यू एसबीआई, न्यू एसबीआई का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी जो मैं बी डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करूंगा तो क्या कॉल होगा? अभी देखो इसका आउटपुट कौन बताएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? कोड मैंने थोड़ा ऊपर किया हुआ है, यस। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, कौन बताएगा? सबसे पहले इसका आउटपुट क्या आएगा? यस सर, एसबीआई का गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा सर। यहाँ पर क्या है, 8 क्या है, स्क्रीन दिख 8% रही है आएगा ना, क्या क्या? सर 8.4। यस वेरी गुड, 8.4। अभी इसका क्या आउटपुट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आईसीआईसीआई का 7.3। 7.3 क्यों आया? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट किसका बना है, आईसीआईसीआई का ऑब्जेक्ट बना है, तो आईसीआईसीआई की मेथड को वो कॉल करेगा। हाँ नाम सही है, देखो सबके नाम सेम है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक्सिस का भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गया, एक्सिस का हम कॉल कर 9.7, तो आउटपुट में ऐसा आ गया, ठीक है। एक और एक एग्जांपल है शेप वाला, तो शेप का एक ही मेथड हमने, फिर रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल क्या करता है, ओवरराइड करता है, इसको ओवरराइड बोलते हैं। इसमें भी क्या बोलते हैं, ओवरराइड बोलते हैं। बैंक भी है, उसकी मेथड को हम ओवरराइड बोलते हैं। देखो ओवरराइड कर रहा है तो यही कॉल होता है, ठीक है। एक एनिमल का भी एक एग्जांपल, एनिमल है जो ईट करता है, सभी एनिमल ईट करते हैं। डॉग है वो भी इस ईट करता है पर अलग होता है। कैट भी ईट होता है, उसका भी अलग होता है। लायन का भी तो हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेंगे, फिर उसमें ओवरराइड करते जाएंगे। अगर कोई मेथड ओवरराइड नहीं हो पा रहा है तो हमारा कौन सा एनिमल वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है, एनिमल वाला मेथड कॉल होगा। अच्छा देखो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो डेटा मेंबर्स पे अचीव नहीं होगा, जैसे कि डेटा मेंबर में इंटीजर स्पीड लिमिट 90 लगा दिया, इस क्लास में एक डेटा मेंबर है, एक इंटीजर स्पीड लिमिट, ठीक है, और दूसरी स्पीड लिमिट हमने लगाई 150। तो देखो ये ऑब्जेक्ट और स्पीड लिमिट लगा दिया, तो कौन सा होगा, कौन सा कॉल होगा? देखो सुपर क्लास का रन होगा, सुपर क्लास का कॉल होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा इंटेलिजेंट है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो डेटा मेंबर पे नहीं एप्लीकेबल है, तो इसमें क्या आएगा, स्पीड लिमिट 90 है तो 90 प्रिंट होगी, ठीक है। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है मल्टी लेवल इंटरनेट में कैसे होता है, तो एनिमल क्लास है, तो एनिमल क्लास डॉग में एक्शन किया, बेबी डॉग ने डॉग को एक्शन किया, और एनिमल A1 A2 A3, A1 इज न्यू एनिमल, A2 इज न्यू डॉग, A3 इज न्यू बेबी डॉग, A1 डॉट रीड, A2 डॉट रीड, A3 डॉट रीड। हम क्या करेंगे, तो ये एग्जांपल में क्या, A1 डॉट ईट, तो A1 का हमने ऑब्जेक्ट न्यू एनिमल का बनाया, तो न्यू एनिमल का ईटिंग आएगा ये। फिर क्या है A2 डॉट ईट, A2 का हमने न्यू डॉग बनाया, न्यू डॉग ईटिंग फ्रूट्स। A3 डॉट ईट ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है।
ठीक है, दैट्स इट, एग्जाम्पल खत्म। अपना ऑब्जेक्ट और क्लास का ये पूरा का पूरा दोनों चैप्टर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हमने खत्म किया पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक दो टॉपिक अगर रह जाता है दैट विल कंप्लीट लेटर ऑन। वे नेक्स्ट क्लास हम एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है एवरीवन? फाइन। सो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, भले ही हम थोड़ा जल्दी खत्म कर लेते हैं आज का लेक्चर, बट विल कीप अप टू हियर। एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो पूरा फ्रेश नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, मैंने बोला है फाइल का रेडी रखना है, एवरीवन कीप रेडी योर फाइल्स। आई विल बी टेलिंग यू टू शो मी योर फाइल्स, ओके, स्पेशली प्रैक्टिकल फाइल्स। एनीवे, एवरीवन राइट डाउन योर numbers in chat box. We'll end our session. Okay, everyone has written the number, fine. So let's let me stop first presentation. Let me stop recording. Everyone, we'll meet in next lecture with new chapter, okay? Fine.